That's right. Aam Aadmi Party is protesting currently on the streets of the national capital. This is DDU Marg, where Aam Aadmi Party workers have come on a large numbers, but the Delhi police have completely stopped them from going towards the Bharatiya Janata Party headquarters. They have been clearly stating that it is the Bharatiya Janata Party who tried to derail the mayoral elections, and they are working on the behest of the LG. A few more Aam Aadmi Party leaders joining us with us, sir. BJP is saying that and claiming that it was the Aam Aadmi Party workers who started the violence inside the house. वो लोग ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों के पास नंबर्स थे, तो आखिर फिर क्या दिक्कत थी तमाम चीजें वहाँ पर सुचारू रूप से चलाने में, क्या कहेंगे? Firstly, they have chosen a person who is much junior to the person who has won 6 times in the MCD. It was Mr. Goel, Mukesh Goel, who had to be chosen as the pro tem Peetasin Adhikari, but they did not, because they wanted the MCD to be snatched away from the legal system. अगर आप देखें तो हमारी मेजॉरिटी होने के बावजूद उन्होंने कानून का उल्लंघन किया, जानबूझ के किया। अपने जूनियर मेंबर को पहले पीठासीन अधिकारी बनाया, फिर उनके द्वारा जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनको शपथ दिलाने की कोशिश की, जो बिल्कुल गलत था। उनको तो वोटिंग राइट ही नहीं है। कानून का सीधा सीधा संविधान की धारा 243R साफ साफ कहती है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं उनके पास वोट डालने का अधिकार नहीं है। ऐसे में हाई कोर्ट, मान लिया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कानून भी यही कहते हैं सारे के सारे, तब उनको जानबूझ के उनको that they went against the rules and constitution, against the constitution as well. Sir, they also are claiming that some of the Aam Aadmi Party councillors have brought sharpened weapons, including glasses as well, and they attacked the BJP councillor. The member of parliament was there in their house as well. They were claiming that as well. How true is that? Can somebody believe this? That an elected member will take these kind of weapons with him and he will be drunk? अगर ऐसा होता तो लोगों ने नकार दिए होते। लोगों ने चुन के भेजा है, और चुन के भेजने का मतलब है कि इनकी साफ छवि है और वहाँ सिक्योरिटी है, और उसके बाद फिर वहीं क्यों नहीं क्लेम किया? बाद में प्रेस में जाने के टाइम आप सब कुछ बता रहे हैं, जब ये लोग वहाँ इस तरह की हरकत कर रहे थे तभी क्यों ना पकड़वा दिए? Don't you think because of the delay in the vote taking ceremony, Delhi has left without any system, without any? यही तो बीजेपी चाहती है, यही तो चाहते हैं कि उनको अच्छी तरह पता है कि मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी आम आदमी पार्टी की बननी जरूरी है, बननी संभव है और अवश्य है। इसीलिए वो चाहते हैं कि ना बने, इसीलिए वो डिरेल कर रहे हैं प्रोसेस को। क्या आपकी डिमांड है सर? यहाँ पर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब आगे क्या होने वाला है? देखिए, इस डिमांड का सबसे बड़ा लाभ ये होने वाला है कि जो बीजेपी है वो एक्सपोज हो रही है। बीजेपी के बारे में लोगों की धारणा अब समझ में आ रहा है बीजेपी को कि बीजेपी गलत कर रही है, लोगों को पता चल रहा है। दूसरा, हम एलजी साहब की कानून के प्रति जो उनकी जो गुंडागर्दी है, जो चोर दरवाजे से एमसीडी को छीनने की कोशिश है, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये प्रदर्शन जब तक चलता रहेगा जब तक सिस्टम को ठीक नहीं किया जाता। To show these visuals of the Aam Aadmi Party protest which is happening at the Deen Dayal Upadhyay Marg here in the national capital, where the Aam Aadmi Party is protesting, and they are clearly claiming that it was the Bharatiya Janata Party who tried to delay these elections because they do not want any system in Delhi. But these are the elected councillors of the Aam Aadmi Party who are sitting on the street and currently protesting against the Bharatiya Janata Party. They wanted to march towards the BJP headquarters, but as you can see, barricading has been done by the Delhi police in large numbers. The Delhi police posters have arrived over here to tackle the situation, to tackle the law and order. Okay, so this is the charge of the Aam Aadmi Party, but the BJP also staging a protest. Yes, what the BJP's charges? System of this. ये एक कुल मिला के आज उनका दिवालियापन सामने आ चुका है। आप ये बताएं, 143 जब निगम पार्षद दिल्ली जनता चुन के दिए और पूरा बहुमत हमारे साथ है, तो हम डिले क्यों करेंगे? और ऐसी क्या मंशा थी जो कि शपथ ग्रहण में पहले नॉमिनेट मेंबर को शपथ दिलवाना आज तक पूरे संविधान में नहीं हुआ, और उसके बाद पीठासीन अधिकारी
हमारा बनना था आम आदमी पार्टी का, बीजेपी ने अपना बनाया, एलजी ने बैकडोर से बनाया। उसके बाद 10 नॉमिनेट। All right, let's get in a word from the BJP. Manjinder Singh Sirsa on the phone line with us. Mr. Sirsa, we are seeing massive protests. The Aam Aadmi Party is saying that the BJP is trying to subvert democracy. देखिए, संविधान के मुताबिक अरविंद केजरीवाल जी को काम करने की आदत ही नहीं है। वो ना संविधान को मानने को तैयार है, ना देश के किसी कानून को मानने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी क्लियर डायरेक्शंस हैं कि कौन कैसे काम करेगा। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर तौर पर स्पष्ट इसकी जानकारी दे रखी है। उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जब घबराए हुए हैं कि उनके काउंसिलर उनका साथ देंगे नहीं देंगे, जिस तरीके से आज वो सड़कों पे हुड़दंगबाजी कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट नहीं है, बेसिकली हुड़दंगबाजी है। और ये कोई नई बात नहीं है अरविंद केजरीवाल के लिए, हमेशा से उनका यही काम रहा है, चाहे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त, तो जो करते हैं आपने देखा हमेशा। और अभी उनकी डेमोक्रेसी पे ना तो उनका विश्वास है, ना उनका संविधान पे विश्वास है। संविधान के मुताबिक जो काम किए जाते हैं वो भी उनको पसंद नहीं है, क्योंकि ना कोई कानून है ना कायदा, बस जो अरविंद केजरीवाल के वही। लेकिन सिरसा जी, आम आदमी पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि बीजेपी हार गई है तो वो दिल्ली वालों को सजा देना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि यहाँ विकास हो, और इसीलिए ऐसा प्रोटेस्ट हो रहा है। दैट्स द रीजन व्हाई इवन इनसाइड द हाउस वी सॉ दीज विजुअल्स। उनका पहले दिन से ये सोच बना रखी है उन्होंने कि हमने ये मैसेज देना है, क्योंकि उनको पता है कि वो फेल हैं। उन्होंने टिकटें बेचकर, काउंसलरों की टिकटें बेचकर अपने ये जो उनके कैंडिडेट हैं वो जीत के आए हैं, ये टिकटें बेची हुई थी। उनको पता है कि हम आगे नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो पहले दिन से एक ग्राउंड बना रहे हैं अपना। अब देखिए, हाउस के अंदर ओथ हो रही है, उनको ओथ पे भी ऑब्जेक्शन है। किस मेंबर की पहले ओथ होगी, किसकी बाद होगी, उनको इस पे भी ऑब्जेक्शन है। उनको इस बात पे भी ऑब्जेक्शन है कि जो टेम्पोरल चेयरमैन बनेंगे वो कौन बनेंगे, उनको इस पे भी ऑब्जेक्शन है। जबकि आज कल गवर्नर साहब ने बड़े क्लैरिटी में बताया कि टेम्पोरल चेयरमैन जो बनाए गए हैं किस क्राइटेरिया में बनाए गए हैं, और वो नाम अरविंद केजरीवाल जी के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से ही भेजे गए नामों में से एक को बनाया गया है, क्योंकि वो बहाना चाहते हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल जी की शुरू से खूबी रही है, बहाना ढूंढो। बहाने ढूंढने में अरविंद केजरीवाल माहिर हैं, काम नहीं करना, बहाना ढूंढना है। तो लड़ते आए हैं, पहले उनकी विधानसभा में इसी तरह लड़ाई होती थी, सड़कों पर लड़ाई होती है, आप निगम में वो लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल जहां जहां जाएंगे वहां वहां लड़ाई को साथ लेके जाएंगे। जी, सौरभ भारद्वाज से बात की हमने, उन्होंने ये बोला कि आम आदमी पार्टी की मेजोरिटी है, मेयर, डिप्यूटी मेयर आम आदमी पार्टी की तरफ से होना चाहिए, लेकिन बीजेपी ये नहीं चाहती है। इनफैक्ट इवन फॉर द काउंसलर्स, for the older men as well, it's not even in the rules, but the BJP is now bringing in these rules. कह रहे हैं कि बीजेपी रूल्स को चेंज कर रही है अपने लिए। आप उनकी बात को भी सच मान लीजिए, आर्गुमेंट के लिए उनको बात को मान लीजिए आप, तो उनसे पूछिए, अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो देश के अंदर कोर्ट कचहरी सब कुछ हैं, आपको पहले भी लगा, आप सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपकी बात को नहीं मानना था, आप दोबारा जाए कोर्ट में अगर आपको लगता है कुछ गलत किया। Okay, all right. So a lot of questions being asked of the Aam Aadmi Party as well. Sirsa ji, thank you for joining us. More reactions coming in. अपना उनका फ्रैक्चर हुआ है, ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल को कानून पर विश्वास नहीं है। हमारी मांग है कि तुरंत से तुरंत हाउस को बुलाएं, तुरंत से तुरंत ओथ होनी चाहिए, और मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना चाहिए इमीडिएटली। तो हम लोग प्रदर्शन करेंगे। ये लोग सोचते हैं कि अपने आप को भ्रष्टाचारी है। ये क्या कह रही है? जैसे मारपीट कराई है संविधान के अंदर, जहाँ पे शपथ ले रहे थे पार्षद, तो ये संविधान का उल्लंघन है ना, ये तो प्रक्रिया है। Joining us right now is Ramveer Singh Viduri, the leader of opposition, the BJP leader in the Delhi Assembly. सर, क्या मांग लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अरे भाई, आपने देखा नहीं सदन के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायकों के इशारे पर आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने पीठासीन अधिकारी, जो एक महिला है, वरिष्ठ निगम पार्षद है, पूर्व मेयर है, उनके ऊपर कुर्सी फेंकी गई है, उनके कागज फाड़ दिए गए, टेबल तोड़ दी गई, गाली गलौज किया है। ऐसे सभी आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ और पार्षदों के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रजिस्टर होना चाहिए और इनको सदन से बाहर निकालना चाहिए। आप लोगों ने कहा था कि एफआईआर करेंगे, एफआईआर पे क्या हुआ? और यही आरोप आम आदमी पार्टी ने ऑनरेबल एलजी से मांग की है कि इनके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रजिस्टर होना चाहिए। सर, सत्या शर्मा जो आप कह रहे हैं कि एक मनोनीत सदस्य है जिनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया गया, उसी पॉइंट पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि ट्रेडिशन चेंज
करने की कोशिश करी थी। एल्डरमैन पहले सभी एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आ गई है। जो पीठासीन अधिकारी है वे शपथ दिलवा रही थी और संविधान के मुताबिक दिलवा रही थी। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने, विधायकों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का अपमान किया है। अरविंद केजरीवाल इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। कब बनेगा मेयर? दिल्ली मेयर का इंतजार कर रहे हैं। तो अब देखिए कौन सी तारीख तय होती है। This is the response coming from Ranveer Singh Viduri, the leader of opposition in the Delhi Assembly, who is also a prominent leader of the Delhi unit of the BJP, and he holds command and saying that, you know, the Aam Aadmi Party corporators were involved in assault on the women legislators of the Bharatiya Janata Party in the house of the Municipal Corporation of Delhi. So such is the scene, and this is a counter protest, mind you, because the Aam Aadmi Party is also holding a big protest outside the headquarters of the Bharatiya Janata Party at the Deen Dayal Upadhyaya Marg. So it remains to be seen what will be the outcome of these protests, because both the parties jostling for power at the local level, because at the state level the Aam Aadmi Party has significant edge above the BJP, and that is why the battle for the supremacy at the local level in the national capital has reached the street. Both the BJP and the Aam Aadmi Party are upping the ante against each other. No party is willing to cede an inch to the opposition party, and that's why you are clearly seeing a political deadlock between the BJP and the Aam Aadmi Party. And we also reported from the streets in the Delhi where the common man of Delhi is suffering, while both the parties are trying to lay the blame on others' floor, not responding to the questions of governance, and both the party are trying to, you know, get an advantage ahead of each other. Back to you. So the Delhiites are suffering, but the BJP and the Aam Aadmi Party are busy protesting. इतने ऊंचे नैतिकता के पहाड़ पर चढ़ के अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखते हैं, तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया। और एलजी साहब ने जो 10 एल्डरमैन बनाए वो भाजपा के पीछे इसका मतलब एलजी साहब को इतने बड़े एम्पायर नहीं है जो नैतिकता के पहाड़ पर चढ़ के न चिट्ठियां लिखते हैं। एलजी साहब तो भारतीय जनता पार्टी के जिला के लोगों के साथ बैठ के लिस्टें बना रहे हैं। एलजी साहब के पास इतना समय कि पूरा गणित लगा रहे हैं। अच्छा कौन से Well, the Aam Aadmi Party continue to protest over here on the streets of the national capital. This is the Deen Dayal Upadhyaya Marg, and Saurabh Bharadwaj currently giving and stating the demands of the Aam Aadmi Party over here, and clearly stating that it is the BJP who tried to delay the entire oath-taking ceremony of the Bharatiya Janata Party councillors. The protest continues on the streets of the national capital, but heavy police barricading, paramilitary forces and Delhi police also deployed over here. The water cannons also deployed over here, because the Delhi police have not given any sort of permission to Aam Aadmi Party to continue their protest, and they wanted to march towards the Bharatiya Janata headquarters, but Bharatiya Janata Party on the other side also protesting on the streets of the the protest. Concerns, some more people joining with me, and leaders also of the Aam Aadmi Party on the streets. Sir, BJP का आरोप है सीधा आपके पास नंबर्स थे, फिर क्यों आके हंगामा किया गया उसके अंदर? बीजेपी का ये भी आरोप है आप लोगों ने हमला किया आम आदमी पार्टी के कुछ बीजेपी के कुछ पार्षदों पर। जी बीजेपी के पार्षदों पर कुछ नहीं है, जो एलजी अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं, जो 15 साल के भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी की इसमें सरकार बनती है तो इनका भ्रष्टाचार खुल जाएगा। इसलिए उपराज्यपाल हमारे जबरदस्ती अपने आप तानाशाही अपनी दिखा के जनता को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। दिल्ली की जनता ने इन्हें नकार दिया है, इसलिए नकारा कि इनके 15 साल के भ्रष्टाचार को आम आदमी पार्टी सामने लाएगी और इन लोगों को जेल भेजेगी, इसलिए लोग तानाशाही कर रहे हैं। अब आप लोगों की डिमांड्स क्या है? यहाँ से आप लोग प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं। हमारी डिमांड ये है कि संविधान का एलजी साहब उल्लंघन ना करें। जो नॉमिनेटेड पार्षद है उनको संविधान की रक्षा हो, उनको शपथ पहले ना दिलाई जा, हमें कानूनी तरीका से जो एक्ट कहता है उसके अनुसार की जा। उनका जो ये भी कह रहा था कि हाउस में आप लोगों ने बीजेपी काउंसलर्स पर हमला नहीं, पहले हमला उन्होंने किया है।
हमारी जो महिला काउंसलर हमारी बहनें हैं उनके साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया, बदतमीजी की, तब ये काम हुआ। तो रूल्स के खिलाफ जाकर काम किया। Some more Aam Aadmi Party leaders over here at the Dindayal Upadhyay Marg, where the protests continue to take place. Massive protest by the Aam Aadmi Party over here in the national capital, as the Delhi police have completely blocked the road and they have not given any such permission over here to march towards the Bharatiya Janata Party headquarters. They wanted to go further, but now the Delhi police also had stationed their buses to detain them, because the permission has not been given by the Delhi police for any such protest to move towards the towards the BJP headquarters. The Aam Aadmi Party leaders over here, including the MLAs and the councillors, protesting in large numbers and stating that it was the Bharatiya Janata Party who first started the disruption of house on that very day, and they have, according to wrong rules, first tried to get the oath done of the nominee. These are the visuals of the Aam Aadmi Party's protest, but remember there's also a counter protest from the BJP. The BJP says that the Aam Aadmi Party was looking for excuses and this is their opportunity to just blame the BJP. Take a look at this report. जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और दिल्ली के अंदर एमसीडी में मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंड अप कमेटी के चुनाव हो रहे थे। उसी दौरान एलजी ने 10 एल्डरमैन अपॉइंट किए थे, यानी कि पार्षद, और उनको पहले शपथ दिलाने को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन। संविधान का उल्लंघन किसने किया है, लोकतंत्र की धज्जियां किसने उड़ाई है, वो तो पूरे देश ने देखा है। एमसीडी की एक कैमरे में जो रिकॉर्डिंग हुई है, किस तरीके से उनके पार्षदों ने वहां पर गुंडागर्दी मचाई, सरकारी संपत्ति को तोड़ा, ये पूरी दुनिया ने देखा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनके नॉमिनेटेड मेंबरों को क्या शपथ नहीं दिलाई गई? क्या इनके नॉमिनेटेड मेंबर जो राज्यसभा से चुनकर आए, क्या वो उस फैसिलिटी को नहीं ले रहे देश की? क्या गलती कर दी है देश ने या दिल्ली ने? दिल्ली ने जो नॉमिनेटेड मेंबर भेजे हैं चुनकर, वो हमारा हक था। तो डर है कि कहीं हार रहे हैं, इन्होंने पहले सोच लिया कि अगर पहले हमारी शपथ हो जाएगी तो इनको शपथ ही नहीं लेने देंगे। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर, और ये कुछ ही दूरी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर है, और उसी के वहां पर जाएंगे और उनका घेराव करने की कोशिश करेंगे। आज उनकी पंजाब में सरकार बन गई, आज उनके 134 पार्षद होने के बावजूद भी अगर हमारे 10 पार्षद नॉमिनेट होते हैं जो संविधान के अनुरूप हैं, उनको वो ओथ दिलाने नहीं देते। जब तक वो उनको ओथ नहीं दिलाने देंगे तब तक हम ये प्रदर्शन जारी रखेंगे। वो चाहते हैं कि गुंडागर्दी करके, लोकतंत्र का अपमान करके सरकार चला लेंगे, तो ऐसा होगा नहीं। क्योंकि जब जिस प्रकार से उन्होंने हमारे पार्षदों पर हमला किया, अपने बाहर से गुंडे बुला के अपने पार्षदों को उस कहा कि भाई इनको मारो, चुनाव नहीं होने दिया। केजरीवाल को डर किस चीज का है? अगर उनके पास 134 पार्षद हैं तो वो अपना चुनाव करवाएं, अपना मेयर बनाएं, हमारे 10 पार्षदों का अपना ओथ करवाएं। किस बात का डर है? लेकिन केजरीवाल जी केवल पब्लिसिटी, लड़ाई झगड़ा, गुंडागर्दी, लोकतंत्र पर विश्वास नहीं, ऐसे कार्यों में विश्वास करते हैं। हम केजरीवाल को सबक सिखा के रहेंगे। हाँ, केजरीवाल की पार्टी गुंडागर्दी है ना। केजरीवाल जी उनका मुखिया अली बाबा है, उसके सारे चोर और गुंडे, उनके सारे पार्षद और एमएलए हैं, वो मिल बांट के लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में एक भय का वातावरण बनाना चाहते हैं, लेकिन ये बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। Block between the BJP and the Aam Aadmi Party, as the Aam Aadmi Party is protesting outside the BJP headquarters at the DDU Marg. बड़े बड़े तलवार लेकर आए थे, बंदूक लेकर आए थे। क्या मतलब है इसका? पूरे देश की मीडिया वहाँ थी, आप सब लोग भी वहाँ थे। आपने देखा किसी के हाथ में वो जो बातें कर रहे हैं? एक सांसद ने कहा कि वो दारू पिया हुआ था, तो हमने भी कहा कि वो 7 के 7 सांसद दारू पी के आए थे। इतने टुन थे कि हर हिलता हुआ आदमी शराबी दिख रहा था। मुझे लगता है कि इन बातों से वो जो व्यवस्था की बातें उसे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डाइवर्ट करने की साजिश कर रहे हैं। हम जो मूल सवाल है कि मेयर की नियुक्ति में जो एल्डरमैन है, क्या वो वोट करेगा या नहीं करेगा, आप क्यों नहीं क्लियर कर रहे हैं? हमें आप पे भरोसा नहीं है। भरोसा इसलिए नहीं है कि आपने एक एक कर जो आदेश निकाले हैं वो सब आदेश अवैध हैं। सर, एक आखिरी सवाल जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि हंगामे पर हंगामे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आम आदमी
पार्टी यहाँ प्रोटेस्ट कर रही है, बीजेपी कहीं और प्रोटेस्ट कर रही है। दिल्ली का सिस्टम फेल हो चुका है इस समय। आप लोग इलेक्टेड काउंसलर्स यहाँ पर हैं जो कि सड़कों पर बैठे हुए हैं। यहाँ से आगे रास्ता क्या है? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड सर? देखिए, हम भी चिंतित हैं, इसलिए कि जिन काउंसलर्स को सदन में होना चाहिए आज वो सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। और ये वो काउंसलर हैं जिनको दिल्ली की जनता ने अपना मैंडेट दिया है। वो चाहते थे कि आम आदमी पार्टी का मेयर बने, लेकिन उपराज्यपाल दिल्ली के सरकार के मुखिया है, संवैधानिक व्यवस्था में दिल्ली के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं। उनकी जिम्मेदारी थी कि जनता के मैंडेट को एक्सेप्ट करे। तभी मैंने कहा कि अगर जनता के मैंडेट को बाईपास कोई करे तो समझिए कि कितनी बड़ी साजिश की जा रही है। हम इसके मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। Well, there you heard from one of the Aam Aadmi Party leader as well, clearly stating that it is the LG who is controlling the entire system over here, and therefore the reason perhaps now the Aam Aadmi Party is staging the protest, and this will they will not allow